पहली बार इंडिया टीम के कोच यहाँ आए हैं मेघवरन सिंह स्टेडियम करमपुर में, तो कैसा लगा यहाँ आकर आपको? At first, a very warm welcome from here, from the academy, and also from the school I was visit. And I have a very good translator with me who helped me to understand everything, and he told me also about the region, the culture, and all the things. I liked it because it is not only visit the academy, it is also learning from each other. And I think there are here a lot of possibilities, but we have also something to change. And I discussed with the manager how we can do that. With Antiket, he's the manager, and I think with small changes we can make big steps. यहाँ दो कोच पहले से हैं, इंद्रदेव जी और पूजा सिंह जी। तो इनका जो सिखाने की कार्यशैली है उसमें कुछ आप परिवर्तन किए, उनको सिखाए होंगे कुछ नई चीज़? Now, at first, there are so many kids that you have to think about what is our goal of the academy. And the goal for the academy is that they will bring players on a higher level. How can you bring players on a higher level? To bring them in a situation that they have a lot of ball connections, that the coach can make the right questions, that the coach can help him to develop. That's only possible when we try to think about how can we manage the pitch so that every player, when he has practice, well involved is in the game. So I have some ideas about that. I will discuss with Antiket how to do that. And I think also that one of the recommendations have to be that we need 2 coaches more, minimum, because the group is big. And I think one of the strongest point here is that they start on a young age, on a AstroTurf pitch. When you start on a young age, then I compare with Europe, I see the same. There they start at 6, 7 years old. Here they start on 8 around? Yeah, 8, 10. So they start immediately with the right techniques. I discuss also, don't play too much at the grassroots, because you have here a good pitch. Let them train on that pitch, because at that pitch they need the special AstroTurf skills. And the earlier they learn that, the better it is. पेरिस में ओलंपिक होने वाला है, वहाँ ओलंपिक टीम में यहाँ करमपुर से 2 खिलाड़ी हैं, ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल। तो पिछली बार कांस्य पदक जीता था भारत, इस बार क्या सोना जीत सकता है? In my opinion, there are 6 very important countries who have chance on a medal. And it is really important, our first 3 games. And then when you play the first 3 games on a good level and you get the right results, then you can look further. But at first, the first match is the most important, New Zealand. And then you can focus on the second match. Don't dream about medals. When you start to dream about medals, you lose. At first, step by step. आपके यहाँ इंडिया टीम के सबसे बड़े कोच आपके यहाँ आए हुए हैं, तो कुछ डायरेक्शन दिए होंगे आपको? डायरेक्शन तो हाई लेवल का है। हम लोग तो बचपन से जो सीखे हैं, जो ट्रेनिंग किए हैं, उस ट्रेनिंग से बहुत अंतर है। हम लोग रनिंग कराते हैं आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा रनिंग कराते हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने मना कर दिया कि इतनी रनिंग आपको कराने की ज़रूरत नहीं है, ये रनिंग कराइए 25 मिनट। और उस 25 मिनट के अंदर जो है आपको सारा कुछ करना है, सिर्फ रनिंग दौड़ाना नहीं है आपको, रनिंग के साथ साथ उसमें एक्टिविटी करानी है। जो भी एक्टिविटी आपको आए जिसमें बच्चे खुश रहें, हंसमुख रहें, हमेशा वो खेलते रहें और खुश रहें। हम लोग जो पहले कराते थे ट्रेनिंग, तो कंटिन्यू ट्रेनिंग रनिंग कराते थे, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा जो हम लोग ट्रेनिंग होती थी, स्मूथ सिर्फ रनिंग होती थी। उसमें क्या होता है कि बच्चे एकदम शांत रहते हैं। और जो ये सर ट्रेनिंग बता रहे हैं 25 मिनट के अंदर कराना है, तो सारी चीज़ उसमें इन्वॉल्व हो, बच्चा हंसता भी रहे, बच्चा खेलता भी रहे और उसको पता ना चले कि हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। ये हमारे और इनकी ट्रेनिंग में ये अंतर है। सर सेफ्टी को लेकर जो है आप कह रहे थे कुछ? सेफ्टी के लेकर सर ने जो अभी बताया, आपको अंग्रेजी में बताया, वो सिम्पैड के लेकर जो पैर में लगता है, माउथ के लिए जो कहते हैं मुंह में लगता है, गोलकीपर के लिए कह रहे थे जो कि पैड उसको पूरा प्रॉपर किट चाहिए,
बच्चों को ग्लव्स चाहिए हाथ में, ये चोट ना लगे, वो सारी किट के बारे में कह रहे थे कि बच्चों के पास वो किट उपलब्ध अभी नहीं, उनको किट देने के लिए वो कह रहे हैं। हो सकता है हॉकी इंडिया से ये रिप्लाई करें तो उधर से शायद बच्चों को कुछ किट मिले। अभी हॉकी इंडिया ने 100 स्टिक और 4 गोलकीपर के लिए पैड भेजा है, अभी आया नहीं है, बस आने वाला है, जब आ जाए उसके बाद 100 स्टिक फिर वो देने के लिए बोले हैं। चलिए ठीक है सर, थोड़ा सा हम जो है चाहेंगे कि यहाँ के संरक्षक महोदय से उन बातों को जो है सुन लें, क्योंकि सर जो है प्योर सब कुछ इंग्लिश में बोले हैं, तो थोड़ा उनसे हिंदी अनुवाद हम जानना चाहेंगे। हमारे ग्रामीण अंचल में करमपुर में जो है इंडिया के कैप्टन आए हुए हैं, टीम के कैप्टन इसको कहा जाए या कोच कहा जाए, जो है की बातों को आप जो है कन्वर्ट करके बता दीजिए संक्षेप में। देखिए, हॉकी एक ग्लोबल स्पोर्ट है, तो जब इंडिया खेलता है बाहर की कंट्रीज़ के साथ, तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग टेक्निक्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड किया है। तो सर ने वहाँ की तकनीकों को यहाँ पे लेके आने के लिए, वहाँ की ट्रेनिंग टेक्निक, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ लाने के लिए बोला है। जैसा कि इंद्रदेव को सर ने बताया कि हम लोग रनिंग कराते हैं आधा घंटा 1 घंटा, उसको उन्होंने रोकने के लिए बोला है रनिंग एसेशन लें, क्योंकि गेम में एक प्लेयर चेंज होने से पहले 2-3 मिनट 4 मिनट ही गेम खेलता है, तो ज़रूरी है इंटेंस गेम खेलना, कि आप 4 मिनट 5 मिनट में गेम पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग के लिए नई थी, और कैसे ट्रेनिंग करना है बच्चों की, सबसे ज़रूरी चीज़ उन्होंने बताया कि खेल के साथ साथ शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। जब बच्चा बड़े स्तर पे जाता है और उसको दुनिया को देखना होता है, दुनिया के सामने बात करनी पड़ती है, तो इसी सिलसिले में फिर हम लोग दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल भी गए। वहाँ भी उन्होंने वहाँ के बच्चों से बात की कि आप लोग खेल के प्रति आइए, और जो खेल के बच्चे हैं मेघबरन सिंह स्टेडियम में, उनको बोला कि आप शिक्षा के प्रति और प्रेरित होइए। ये दृष्टिकोण कभी हम लोगों ने इस तरीके से नहीं देखा था, जो सर ने नई चीज़ें बताई। सर पहली बार जो है इंडिया लेवल के कोच जो है इस फील्ड पर आए हैं, तो फील्ड को देखकर और यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर क्या कहें? सर का कहना है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसमें 12 खिलाड़ियों पे 1 कोच होना चाहिए, और आज सर जब सुबह आए थे तो यहाँ पे लगभग 150 खिलाड़ी थे, तो उनके हिसाब से मिनिमम यहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम 3 कोच और चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए, तब हर बच्चे पे ध्यान जा पाएगा। तो इसी को देखते हुए मुझे लगता है यही इम्प्रूवमेंट एक सबसे मेजर है, जो मिस्टर भोलानाथ सिंह जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो अभी लगभग 15 दिन पहले आए थे, और जिनके रिकमेंडेशन पे ही आज सर आए हैं, और उन्होंने स्टेडियम के लिए हॉकी स्टिक भी मुहैया कराने के लिए बोला है और ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स। मुझे लगता है कि जितना प्रेम उनको इस अकेडमी से है, जितना प्रेम उनको ग्रास रूट लेवल हॉकी से है, अगर आरपी सिंह साहब और भोलानाथ सिंह जी के समक्ष हम लोग इस बात को रखेंगे सर की रिकमेंडेशन के साथ, सर के लेटर पैड पे, तो मुझको लगता है कि एक बहुत अच्छा बदलाव आने वाला है आपके यहाँ पर। जी बिल्कुल। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और बहुत खुशी की बात है, इस क्षेत्र की खुशी की बात है, करमपुर की धरती पर जो है इंडिया लेवल के जो है कोच आए हुए हैं। देखिए इस समय जो है वर्तमान में आपके कोच से भी मैं बात करा दी, और जो इंडिया लेवल कोच है उनसे भी बात करा दी, और संरक्षक से भी बात कराई। आपने जो भी बात कही, संरक्षक ने सारी बात जो है हिंदी में सरल शब्दों में बताया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।